محمود، فاروق، فرزانہ اور انسپکٹر جمشید سیریز پونی محل۔ پچھلی قسط میں محمود رات کے اندھیرے میں سارے گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ تینوں رات 11 بجے کے قریب اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے جس پر وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک سائے کو باہر نکل کر شمالی کمرے کی طرف جاتا دیکھتے ہیں۔ اب اس سے آگے پڑھیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اور کمنٹ میں سلام کا جواب دیں۔ او ارے ہائے! تینوں اس وقت صرف ایک بات سوچ رہے تھے کہ یہ سایہ کون ہے اور شمالی کمرے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پیچھے قدم اٹھا رہے تھے یہاں تک کہ سایہ شمالی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب تو ان کی حیرت میں اور اضافہ ہوگا کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ شمالی کمرے میں کوئی چیز نہیں، وہ بالکل خالی پڑا ہے۔ کھلے دروازے میں انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا۔ تاریکی میں نے سامنے والی کھڑکی کھلتے دیکھی اور پھر سایہ نے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جلدی کرو کہیں وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، محمود نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تینوں تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے اور کھڑکی طرف لپکے۔ باہر تاروں بھرے آسمان کے نیچے انہوں نے سایہ کو جنگل کے ساتھ ساتھ ایک سمت میں جاتے دیکھا۔ وہ جنگل میں داخل نہیں ہوا تھا، یہ وہی راستہ تھا جس پر چلتے ہوئے انہوں نے راہ گیر سے بات کی تھی۔ ہمیں یا تو کچھ دیر انتظار کر لینا چاہیے یا پھر اتنی آہستگی سے نیچے پہنچنا چاہیے کہ دھمک پیدا نہ ہو، محمود نے کہا۔ ترکیب تم بتا دو، کون سمجھائیں گے؟ فاروق بولا۔ ترکیب بہت آسان ہے، پہلے میں نیچے لٹک جاتا ہوں، اس کے بعد تم اپنی ٹانگوں نیچے لٹکا دینا، میں تمہاری ٹانگیں پکڑ کر کچھ اور نیچے ہو جاؤں گا، شاید زمین سے پاؤں لگ جائیں، نہ لگے تب بھی میں تمہاری ٹانگیں چھوڑ دوں گا تو آواز بہت ہی ہلکی پیدا ہوگی، محمود نے ترکیب بتائی۔ ترکیب واقعی زوردار ہے، لیکن یہ تم نے کیسے بتا دی؟ آج فرزانہ کو کیا ہوا ہے؟ فاروق نے فرزانہ پر چوٹ کی۔ میری عقل پر تمہارا سایہ پڑ گیا ہے، فرزانہ نے بھی فوراً جواب دیا۔ خدا کا شکر ہے سایہ ہی پڑا ہے، اگر کہیں میں نے خود تمہاری عقل پر ہاتھ صاف کر دیا ہوتا تو اس وقت تم بالکل کوری ہو چکی ہوتی۔ فاروق بھی کہاں رکنے والا تھا۔ فاروق، یہ تم موقع محل دیکھ رہے ہو، محمود نے جل کر کہا۔ محل تو پہلے دیکھ چکا ہوں، اس وقت صرف موقع دیکھ کر بات کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے اپنی زبان کو پکڑو، کہیں بے لگام نہ ہو جائے، یہ وقت بالکل مناسب نہیں۔ اچھا، اب میں مناسب وقت کا انتظار کروں گا، امید ہے جلد ہی آ جائے گا، فاروق نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ اور خدا کا شکر ہے جس نے فاروق کو عقل دی اور تمہاری عقل پر میرا سایہ ڈال دیا، فاروق تڑ سے بولا۔ ابھی ابھی تم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ محمود نے تنگ آ کر کہا۔ اوہ، مجھے افسوس سے خیال نہیں رہا تھا، اب پورا خیال رکھوں گا، اور جب تک یہ اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت ایک اور سایہ درختوں کی اوٹ سے نکل کر پہلے سایہ کے سامنے آ گیا۔ پہلا سایہ رک گیا، انہوں نے دوسرے سایہ کو کہتے سنا۔ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، جلدی بتاؤ کیا خبر ہے؟ جواب میں دوسرے سایہ نے دبی آواز میں کچھ کہا یا نہیں وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکے کیونکہ انہوں نے اس کی آواز نہیں سنی، شاید وہ بہت ہی آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے۔ دوبارہ انہوں نے دوسرے سایہ کی آواز بھی نہیں سنی، شاید پہلے نے اسے خبردار کر دیا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، وہ اسی طرح خسر پسر کرتے رہے، ان کی میٹنگ آخر ختم ہو گئی۔ فاروق نے دبی آواز میں کہا، لیکن یہ دبی آواز دونوں سایوں تک پہنچ گئی۔ انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے سایہ نے پہلے کا بازو پکڑا اور اس سے درختوں کے درمیان کھینچ لیا۔ اب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ جب بولو گے موقع محل دیکھے بغیر بولو گے، وعدہ کرنے پر بھی باز نہیں رہتے، محمود نے جل کر کہا۔ یقین کرو بھائی، اس وقت بالکل سوچے سمجھے بغیر زبان چل گئی تھی، فاروق نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ اور اس سے پہلے تو جیسے سوچ سمجھ کر چلتی ہے، فرزانہ نے جھل بن کر کہا۔ اب دونوں کے دونوں کاٹ کھانے کو نہ دوڑو، کہیں میں ان کی تلاش میں جنگل میں نہ گھس جاؤں، فاروق نے بھی غصے میں آ کر کہا۔ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ جنگل ہمارا دیکھا بالا نہیں، ہمارے پاس اس وقت کوئی پستول وغیرہ بھی نہیں، کہیں وہ دونوں ہم پر حملہ نہ کر دیں، محمود نے کہا۔ بالکل ٹھیک، میں محمود کی تائید کرتی ہوں، فرزانہ نے کہا۔ مجھ سے تو تمہیں خدا واسطے کا بیر ہے، میری تائید تو تم قیامت تک نہیں کر سکتی، چلو اگر بہت مجبور کرتے ہو تو قیامت کے نزدیک تائید کر دوں گی، فرزانہ نے گویا حاتم طائی کی قبر پر لات ماری۔ اب یہاں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں، محل میں بھی ہماری موجودگی بہت ضروری ہے، محمود بولا۔ اچھا، پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ فاروق جلدی سے بولا۔ یہ باتیں انہوں نے سرگوشی میں کی تھیں۔ تینوں واپس چل پڑے۔ کھڑکی زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے ان کے ذریعے واپس محل کے اندر پہنچنا مشکل ثابت نہیں ہوا۔ چلو فاروق، سچ کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کیوں کیا پروگرام ہے؟ جو ہی وہ واپس آئے بتی جلا دینا، تمہارا خیال ہے وہ سایہ واپس آئے گا؟ فاروق نے کہا۔ ہاں، اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو صبح کس طرح سب لوگوں میں شامل ہو سکے گا، اور اس موقع پر گھر کے کسی فرد کا غائب ہونا اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ترکیب تو بہت شاندار ہے، جو ہی وہ کھڑکی کھلان کر اندر آئے گا ہم بتی جلا دیں گے، اس وقت اس کی بکھلاہٹ تو دیکھنے والی ہوگی، ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے، اور اس طرح ہم شاید بہت جلد یہ کیس حل کر لیں۔ اس موقع پر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے، کیوں نہ ہم صبح سارے واقعات فون پر ابا جان کو سنا دیں، ان سے کوئی مشورہ بھی مل جائے گا، محمود نے کہا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ کیس مکمل طور پر خود حل کریں، اس میں کسی کی مدد نہ لیں، فاروق نے کہا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، فرزانہ نے اس کا ساتھ دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بیگم خان کے قتل کی اطلاع تو انہیں دے دینی چاہیے، محمود بولا۔ یہ اطلاع انہیں اخبارات کے ذریعے ہو جائے گی، ہم ٹھیک ہے، تم دونوں جیتے اور میں، محمود کہتے کہتے رک گیا۔ اور میں کیا تم ابھی ہارے نہیں؟ فاروق جلدی سے بولا۔ یار فاروق، ذرا جلدی سے صدر دروازے کو تو دیکھ آؤ، وہ اندر سے بند تو ہے، میں بھی یہی کہنے والی تھی، فرزانہ بولی۔ تو پھر کہا کیوں نہیں؟ فاروق نے جل کر کہا اور کمرے سے باہر کی طرف جانے لگا۔
बल्कि मेरा तो ख्याल यह है कि तुम दरवाजे के आसपास ही मौजूद रहना। क्या खबर कोई इस साय के लिए दरवाज़ा खोलने के तैयार बैठा हो और हम यहाँ सोखते रहें। बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो इस तरफ से अंदर दाखिल हो जाए तो मुझे इतला ज़रूर देना। ये ना हो मैं इधर सोखता रह जाऊँ। फारूक ने पैर पटकते हुए कहा। बेफिक्र रहो, तुम्हारा सूखा हुआ जिस्म देखने का हमें कोई शौक नहीं। फरजाना ने मुंह बनाकर कहा। ये मैं बात पूछूंगा कि तुम्हें किस चीज़ के देखने का शौक है, इसने कहा और चला गया। रात का बाकी का हिस्सा इन्होंने इसी तरह गुजार दिया, लेकिन साहब वापस ना आया, ना सदर दरवाजे से और न खिड़की के रास्ते से। यहाँ तक के दिन निकल आया और इनकी हैरत में हदर इजाफा हो गया, क्योंकि इसके वापस ना आने की सूरत में ये बात फौरी तौर पर मालूम हो सकती थी कि वो कौन है। इन्होंने खिड़की अंदर से बंद कर दी और सदर दरवाजे की तरफ आए। यहाँ फारूक का बुरा हाल था। आज तो मैं खुद को वाकई सूखा हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसने थकी थकी आवाज़ में कहा। हमारा भी यही हाल है, लेकिन तुम्हें अभी थोड़ी देर और यहाँ ठहरना पड़ेगा। वो क्यों, अब क्या काम बाकी रह गया है। फ़ारूक ने झुंझलाकर कहा। हम ये देखने के घर का कौन सा फर्द कम है। अगर दरवाज़ा खुल गया और इसके ज़रिए कोई अंदर आ गया तो फिर हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे और सारी रात की मेहनत ज़ाया जाएगी। लेकिन अगर तुम दरवाजे पर मौजूद रहे। ठीक है, तुम जाओ और जल्द से जल्द काम मुकम्मल करके मुझे छुट्टी दो, फ़ारूक ने कहा। दोनों ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया, एक एक आदमी को अपनी आंखों से देखा और फिर थोड़ी देर बाद वापस कब फ़ारूक के पास आए। सदर दरवाज़ा अभी तक बंद था। दोनों मुलाजमों में से कोई इसे खोलने नहीं आया था। क्यों, क्या रहा, कौन गायब है। अजीब बात है, महमूद ने फिक्रमंद होकर कहा। क्या अजीब बात है, जल्दी बताओ, क्योंकि अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं ठहर सकता, इसने घबरा कर कहा। अजीब, बल्कि अजीब तरीन बात यह है कि घर का कोई आदमी भी गायब नहीं है। ओ अरे हाँ, फ़ारूक ने हैरत ज़्यादा लहजे में इंस्पेक्टर तुगयानी की नकल उतारी। वो नाश्ते की मेज़ पर पहुंचे ही थे कि इंस्पेक्टर तुगयानी आ पहुंचा। इसने आते ही सबके सामने कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और इसकी कहानी अजीब कहानी है। क्या मतलब, महमूद चौंका। बेगम साहिबा की मौत फंदे से नहीं हुई, बल्कि हाथों के जरिए गला घोंटने से वाक़या हुई है। ओह, इसका मतलब है पहले इनका गला घोंटा गया, इसके बाद गले में फंदा डालकर कस दिया गया। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी, फाखरा ने हैरान होकर कहा। शायद इसने पहली बार ख्याल ज़ाहिर किया था। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब जवेद इकबाल साहब ने इनके गले में फंदा डाला, इस वक्त वो पहले ही हलाक की जा चुकी थी। लेकिन ये बात जवेद इकबाल को मालूम नहीं थी, चनाचा इन्होंने यही ख्याल किया कि कत्ल इन्होंने किया है। इस सिलसिले में मैंने इनसे सवालात किए। इनका बयान है कि गले में फंदा डालने से पहले इन्होंने अपने हाथ से गला हरगिज़ नहीं घोंटा। ज़ाहिर है जो शख्स खुद जुर्म का इकरार करता है वो कोई बात क्यों छुपाने लगा। अगर इन्होंने हाथों से भी गला घोंटा होता तो फ़ौरन इकरार कर लेते। लिहाजा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कत्ल इन्होंने नहीं किया। बिल्कुल ठीक, कातिल ने तो दरअसल इन्हें फंसाने के लिए इनके पागलपन से फ़ायदा उठाया है, जिसने बेगम साहिबा का गला घोंट कर फंदा जवेद इकबाल साहब के सरहाने रख दिया, ताकि इल्ज़ाम इन पर आए और इनकी जंजीर भी कालीन पर गिरा दी। दूसरी तरफ जवेद इकबाल साहब की ज़हनी रूह बहकी हुई थी। इस रो में इन्होंने फंदा उठाया और अपनी बहन के कमरे में पहुंच गए और फंदा इनके गले में डाल दिया। बस इन्होंने समझ लिया कि कत्ल इन्होंने किया है। महमूद बोला। तब फिर आखिर वो कौन है जिसने ये भयानक जुर्म किया है, शाकिर ने बेचैन होकर कहा। ये हमें मालूम करना है और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द मालूम कर लेंगे, महमूद ने कहा और फिर वो इंस्पेक्टर तुगयानी की तरफ मुड़ा। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप हमें किसी तरह यह मालूम कर दें कि बेगम साहिबा के माँ बाप का घर कहाँ है या था, तो हम फौरी तौर पर कातिल को आपके हवाले कर सकते हैं। क्या इस केस का तल्लुक इस घर से जा मिलता है, इसके लहजे में हैरत थी। जी हाँ, हम एक डायरी तलाश करने में कामयाब हो गए हैं। इस डायरी के रोज़ से बेगम साहिबा की इन 3 बेटों के अलावा एक और बच्ची भी है और वो इनके पहले शौहर से थी। इस बच्ची को उन्होंने खानुजात खान से शादी करने के लिए अपनी बहन को दे दिया था। अब इस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल रहा कि वो कहाँ है, किस हाल में है या इसकी खाला कहाँ रहती है। आपको जो लाकेट मिला था दरअसल वो बेगम साहिबा का ही था, लेकिन वो और कुछ दूसरी चीज़ें इन्होंने अपनी बच्ची के साथ कर दी थी। लिहाजा अब हमें ये मालूम करना है कि वो बच्ची कहाँ है और लॉकेट इस महल में किस तरह पहुंचा। वाकई ये तो बहुत ज़रूरी है, इंस्पेक्टर तुगयानी ने कहा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ये लॉकेट वो ना हो। लॉकेट 100% वही है, क्योंकि इसके बारे में जब हमने मकतूला से पूछा था तो वो 21 साल पहले की कहानी सुनाने लगी थी। कहानी इन्होंने शुरू की ही थी कि ऐन इस वक्त रफ़ीक मिर्ज़ा एक नई इतला लेकर आ गया। हम इतला की तस्दीक करने के लिए गए, वापस आए तो बेगम साहिबा कत्ल की जा चुकी थी। बाद में इनकी डायरी से वो कहानी मालूम हुई, इससे साबित होता है कि लॉकेट वही था। तब तो ठीक है, हमें यह मालूम करना होगा कि इनकी बहन कहाँ रहती है। मैं अभी इस सिलसिले में भाग दौड़ करता हूँ, इंस्पेक्टर तुगयानी ने कहा और उठकर चला गया। हम भी इस सिलसिले में कोशिश करेंगे, महमूद बोला। तीनों नाश्ते के बाद घर से निकले और वादी की तरफ चलने लगे। केस हर लम्हे उलझता ही जा रहा है, फरजाना बोली। हाँ, लेकिन तफ्तीश का रास्ता बंद नहीं हो रहा, हम आगे भी बढ़ रहे हैं, महमूद बोला। लेकिन अगर हमें बेगम खान की बहन का पता ना चल सका तो हम क्या करेंगे। कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। वैसे मेरा ख्याल है गांव के किसी बड़े बूढ़े से बेगम खान के माँ बाप का पता चल जाएगा। ज़ाहिर है खान वजाहत खान की बारात वहाँ गई होगी और एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो इनसे इनकी दूसरी बेटी के घर का पता चल जाएगा। गाँव के एक बड़े बूढ़े को तलाश करने में इन्हें कोई दिक्कत न हुई और इसने भी फ़ौरन ही बेगम खान के घर का पता बता दिया, क्योंकि शादी में इसने भी शिरकत की थी। ये पता एक दूसरे कस्बे का था। इन्होंने एक तांगा किया और इस गांव में पहुंचे। यहाँ बेगम खान के माँ बाप का घर तलाश करने में कोई दिक्कत ना हुई। दस्तक देने पर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला। जी फरमाइए, बेगम खान के माँ बाप का घर यही है। जी यही है, इसने हैरान होकर जवाब दिया। हम इनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों तो वफ़ात पा चुके हैं। तब फिर आप कौन हैं? मैं इनका दामाद हूँ, यानी इनकी छोटी बहन का खामिद। ओह, तो हमें आपसे और आपकी बीवी से ही कुछ काम है, महमूद ने चौंक कर कहा। क्या मतलब? इसके हलक से कदर बुलंद आवाज़ निकली। क्या बात है अब्बाजी, बाहर कौन है? अंदर से एक नौजवान लड़की की आवाज़ सुनाई दी। ये मेरी बेटी की आवाज़ है, इसकी माँ तो बहुत साल हुए वफ़ात पा चुकी है।
ओह! लेकिन वो लड़की कहाँ है जो बेगम खान ने आप दोनों के हवाले की थी? क्या इसके मुँह से खौफ़ज़दा अंदाज़ में निकला। हाँ, हमें तमाम राज़ मालूम है। फ़ारूक ने नज़रें इसके चेहरे पर जमा दीं। अभी-अभी आपने जिस लड़की की आवाज़ सुनी, ये वही लड़की है। मेरे यहाँ तो कोई औलाद हुई ही नहीं थी। बहुत खूब, हमें इस लड़की की तलाश थी क्योंकि ये लड़की एक बड़ी जायदाद की मालिक बन चुकी है। इसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। ओह! इसके मुँह से निकला। क्या बात है अब्बाजी? इस बार लड़की ने दरवाज़े पर आकर पूछा। इन्होंने नज़रें उठाकर देखा। बेगम खान से मिलती-जुलती शक्ल की लड़की दरवाज़े में खड़ी इन्हें हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। नई बात। बहुत खूब, तो ये है बेगम खान की बेटी। महमूद के मुँह से निकला। जी हाँ, लेकिन हमने ये राज़ कभी इसे नहीं बताया। यही समझती है कि हम इसके माँ-बाप हैं। इसने कहा। अब्बा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी। ज़रा सब्र करो, पूरी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। इसने दुख भरी आवाज़ में कहा। आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं? फरदाना ने इसके मकान पर एक नज़र डालते हुए कहा। मकान जदीद तर्ज का था और शायद पूरे कस्बे में सबसे खूबसूरत भी यही। लड़की और इसके खालू के कपड़े साफ सुथरे, कीमती और नए फैशन के मुताबिक थे। मैं एक साइंसी आलात बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ। मेरा नाम जब्बार तौफीक है। और इनका नाम क्या है? फरजाना ने पूछा। फ़रदौस नसीब। बहुत खूब। फ़रदौस साहब, हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं। आप एक बड़ी जायदाद के मालिक बन गए हैं। बहुत जल्द आपको बेगम खान के महल में आने की दावत दी जाएगी। आओ भी चलें। महमूद ने बाद वाला जुमला फ़ारूक और फरजाना से कहा। अरे अरे, क्या आप बैठेंगे नहीं? कम से कम चाय तो पी कर जाएं। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी हमें बहुत काम है। ये कहकर वो उनसे रुखसत हुए और वापस कस्बा खान की तरफ टांगे में रवाना हो गए। पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचकर इन्होंने टांगा रुकवाया। यहाँ इंस्पेक्टर दुगियानी मौजूद था। इंस्पेक्टर साहब, हम घर के हर फर्द के कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। अगर ये काम आपकी मौजूदगी में किया जाए तो शायद कोई एतराज़ नहीं करेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर इसी वक्त चलिए। और हाँ, बेगम खान की बहन की तलाश के सिलसिले में क्या रहा? मेरे मुताबिक इस सिलसिले में दौड़ो धूप करने गए हुए हैं। वो वापस आएँ तो इन्हें कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं। हम इनका घर तलाश कर चुके हैं। ओह अरे हाँ, इनके मुंह से निकला। जी हाँ, अब उठ चलिए। रास्ते में हम आपको बताएंगे कि हमने घर किस तरह तलाश किया और क्या कुछ मालूम कर आए हैं। फ़ारूक ने मुस्कुरा कर कहा। हैरत ज़्यादा सा इंस्पेक्टर इनके साथ हो लिया। महल में पहुंचकर इसने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। कत्ल के केस के सिलसिले में हम सब लोगों के कमरों की तलाशी लेना चाहते हैं। अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो बता दे। कोई कुछ ना बोला। चंद सेकंड तक इंस्पेक्टर तोयानी ने इंतज़ार किया, फिर कहने लगा। बहुत खूब, तब फिर आप सब लोग ड्राइंग रूम में जमा हो जाएं। इसके बाद हम तलाशी शुरू करेंगे और ज़रूरत हुई तो सवालात भी किए जाएंगे। इसके बाद तलाशी शुरू हुई। वो एक एक कमरे को देखते फिरे। सबसे पहले बकर खान के कमरे की बारी आई। इसके कमरे की अलमारियों में मुख्तलिफ़ किस्म के आलात रखे नजर आए। इन आलात के अलावा कोई काम की चीज़ नजर न आई। मायूस होकर वो बाहर निकले और डॉक्टर फ़ाखर के कमरे में दाखिल हुए। यहाँ इन्हें डॉक्टरी आलात और अद्वियात नजर आए। डॉक्टर ने अपने कमरे को पूरा मतलब बना रखा था और गांव के लोग मुफ्त इलाज करने की गर्ज से इसके पास इस कमरे में आते थे। दवाओं की अलमारियों को महमूद फ़ारूक और फरदाना ने खास तौर पर गौर से देखा। एक अलमारी में इन्हें जहर की शीशी भी नजर आई। जिस रोज़ बेगम खान के दूध में जहर मिला गया, इस रोज़ इस शीशी पर उंगलियों के निशान उठाने चाहिए थे। महमूद ने इंस्पेक्टर तुगयानी की तरफ देखते हुए कहा। मैंने ऐसा कराया था, लेकिन शीशी पर से सिर्फ डॉक्टर साहब की उंगलियों के निशानात मिले थे। अब हम इन्हें कैसे गिरफ्तार कर लेते? इनकी उंगलियों के निशानात तो तमाम शीशियों पर हैं। आखिर ये इन्हीं की शीशियाँ हैं। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। आप ठीक कहते हैं। इस कमरे में भी कोई मतलब की चीज़ ना पाकर वो बाहर निकले और शाकर के कमरे दाखिल में हुए। इस घर में अगर किसी ने हमसे अच्छा सलूक किया है तो वो बेगम खान के बाद शाकर साहब हैं। फरजाना ने अजीब से अंदाज में कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें तफ्तीश में शामिल ही ना करें और इनके कमरे की तलाशी न ले। महमूद ने जवाब दिया। मैंने ये कब कहा? बल्कि मेरा तो मतलब ये था कि शायद वही मुजरम हो और इसी वजह से इन्होंने हमसे अच्छा सलूक किया हो कि हम इन पर शक न करें। हम अब्बा जान के बताए हुए असूल को कभी नहीं बुला सकते और इनका कहना यह है कि एक केस के तमाम मुतल्लिका आदमियों को शक की नज़र से देखो, लिहाजा इस घर के तमाम अफराद इस वक्त हमारी नज़रों में शक से बरी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। शाकर के कमरे में इन्हें स्याह रंग का एक फोम भरा हुआ दस्ताना मिला। उसे देखकर वह सोच में पड़ गया। अगर फरदाना रह न सकी, इस दस्ताने को पहनकर पत्थर आसानी से फेंका जा सकता है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि शाकर ने यह दस्ताना पहनकर वो पत्थर अपनी अम्मी पर उछाला था? महमूद ने इसे घूरा। मैं ये नहीं कहना चाहती था। हम ये नामुमकिन नहीं। हाँ, नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं, और फिर दूसरा दस्ताना भी तो यहाँ नहीं। आखिर एक ही क्यों? इसके बारे में हम शाकर साहब से पूछेंगे। शाकर के कमरे में से निकलकर वो फाखरा के कमरे में दाखिल हुए। यहाँ कई तरह की खुशबू फैली हुई थी। शायद फ़ाखरा को खुशबू का बहुत शौक था। अलमारी में ज़र्क बर्क कपड़े भरे पड़े थे। एक अलमारी में किताबें भरी पड़ी थीं, दूसरी में कशीदकारी का सामान था। मेज़ पर टेबल लैंप रखा था। बहुत देर तक इन सब चीज़ों को गौर ज़्यादा लेने के बाद इन्होंने एक कॉपी के पहले सफ़र पर ये लफ्ज़ लिखे नज़र आए। मैं अक्सर सोचती हूँ, मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, मेरे माँ बाप कौन थे, वो अब कहाँ हैं, क्या वो मुझे याद करके रोते होंगे? मैं तो दिन रात इन्हें याद करके रोती और तड़पती हूँ। काश वो दिन जल्द आए जब मैं इनसे मिलूँ। यूँ इस घर में भी मुझे माँ का प्यार मिला है। बेगम खान ने कभी कमी नहीं महसूस होने दी। फ़ाखरा के कमरे से निकलकर वो महल के पिछले हिस्से में आए। यहाँ खादिम हुसैन और रफ़ीक मिर्ज़ा के कमरे थे। खादिम हुसैन के कमरे में जूतों के 2 जोड़ों के सिवा कोई काम की चीज़ नज़र न आई। महमूद, फ़ारूक और फरजाना देर तक जूतों के तलवों को देखते रहे तो इंस्पेक्टर तुगयानी से न रहा गया। क्या इन जूतों से कोई सुराग मिलने की उम्मीद है? जी हाँ, उम्मीद तो यही है। ज़रा ये तो सोचिए कि खादिम हुसैन
जैसे गरीब आदमी को 3 जूतों की क्या ज़रूरत है, 3, लेकिन ये तो 2 हैं। इंस्पेक्टर के मुंह से निकला। जी हाँ, एक वो इस वक्त पहने हुए भी तो होगा। ओ हाँ, है तो अजीब बात, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम यहीं अटक कर रह जाएं। बाज़ लोगों को किसी चीज़ का शौक होता है, वो इसे ज़रूरत से ज़्यादा भी खरीद लेते हैं। इसने कहा। हाँ ये तो ठीक है, अब रह जाता है रफ़ीक मिर्ज़ा का कमरा। रफ़ीक मिर्ज़ा का कमरा खादिम हुसैन से मुख्तलिफ नहीं था। इसमें भी इन्हें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। वो वहाँ से भी बाहर निकले। तमाम कमरों की तलाशी ली चुकी, लेकिन महमूद ने कहना चाहा, लेकिन फ़ारूक ने इसकी बात काट दी। लेकिन एक कमरा रह गया, यानी जावेद इकबाल का कमरा। क्या इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं? ओह वाकई, इनके मुंह से चौंकने के अंदाज में निकला। जावेद अख्तर को इंस्पेक्टर तो यानी ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद ही रहा कर दिया था और वो वापस आ गया था। लेकिन ना तो वो खुश था और ना गमगीन। बस यूँ महसूस होता था जैसे इसे रंज और गम का कोई एहसास ही नहीं रह गया। इसके कमरे की तलाशी के दौरान इन्हें एक नोटबुक नजर आई। इस नोटबुक के वर्क उठते हुए इनकी नज़रें एक सफ़े पर जम कर रह गईं। इस पर लिखा था, बाजी मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, याद रखो एक ना एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस नोटबुक को अपने कब्जे में कर लें, महमूद ने पुरख्याल लहजे में कहा। क्यों, इसमें क्या खास बात है? अगर यह जुमला जावेद इकबाल साहब के हाथ का लिखा हुआ नहीं है तो फिर ज़रूर कातिल के हाथ का लिखा हुआ है, क्योंकि कातिल अपनी बजाय जावेद इकबाल को फंसवाने के चक्कर में था। ये और बात है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इन्हें बेगुनाह करार दे दिया। और हाँ, शायद यहाँ जावेद इकबाल के हाथ की लिखी हुई कुछ तहरीरें मिल जाएं। हम इनसे इसे मिलाकर भी देख सकते हैं। थोड़ी सी तलाश के बाद इन्हें इस नोटबुक में जावेद इकबाल के हाथ के लिखे हुए कई सफ़े मिल गए। लेकिन यह देखकर इनके जोश में इजाफा हो गया कि इस जुमले में और इन तहरीरों में ज़रा भी तल्लुक़ न था। इसका साफ मतलब ये था कि वो जुमला किसी और ने लिखा था। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह जुमला जिस किसी ने भी लिखा है वही मुजरिम है, महमूद ने पुरजोश अंदाज में कहा। तो फिर हम इन सब के हाथों की तहरीर ले लेते हैं, इंस्पेक्टर तुगयानी बोला। हाँ, अब सबसे पहला काम यही करना होगा। घर के तमाम अफराद से अपने सामने कुछ जुमले लिखवाए गए और फिर अलग कमरे में आकर इन जुमलों को जावेद इकबाल वाली नोटबुक के जुमले से मिलाया गया। लेकिन इस वक्त इनकी हैरत और बढ़ गई जब इन्होंने देखा कि नोटबुक वाली तहरीर इनमें से किसी से भी मिलाप नहीं खा रही थी। अगर यह जुमला इनमें से किसी ने भी नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा? फरजाना ने बेचैन होकर कहा। कातिल ने लिखा है, तुम इतना भी नहीं जानती। फारूक मुस्कुराया। तुम तो चुप ही रहो, इस वक्त कोई इधर उधर की ना हाँकना। अच्छा नहीं हाँकूंगा, इसने कंधे उचकाए। कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से किसी ने अपनी तहरीर बिगाड़ कर लिखने की कोशिश की हो? अचानक महमूद को ख्याल आया, ये ऐन मुमकिन है, और अगर ऐसा है तो फिर तहरीरों का माहिर फ़ौरन भांप लेगा। फारूक बोला, हाँ ये भी ठीक है, तो फिर आप इसे ले जाएं और किसी माहिर से चेक करा लें। बहुत बेहतर, मैं ये ज़रूर करूँगा। इंस्पेक्टर तो यानी नोटबुक लेकर चला गया। अभी तक महमूद, फ़ारूक और फरजाना किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। इन्हें चक्कर पर चक्कर आ रहे थे। अब्बा जान की मौजूदगी में कम से कम हम चक्कर खाने से बच जाते हैं, फ़ारूक ने उकताकर कहा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, महमूद बोला। अब और क्या चीज़ें हारें? हारने के लिए हमारे पास रखा ही क्या है? फ़ारूक ने मुँह बनाया। भाई कुछ हारने की ज़रूरत है कि जीतने की कोशिश क्यों ना की जाए? हाँ, इसका तरीका यह है कि शुरू से आखिर तक तमाम वाक़यात पर गौर किया जाए, वाक़यात की कड़ियाँ आपस में मिलाई जाएँ, और इसका तरीका यह है कि अपने कमरे में बंद होकर बैठ जाएँ। तजवीज़ इंतहाई माकूल है। तीनों कमरे में बंद होकर बैठ गए और शुरू से तमाम हालात और वाक़यात पर गौर करने लगे। कमरे में मौत की सी खामोशी थी। तीनों अलग अलग सोच में डूबे हुए थे। फिर इस हालत में न जाने कितना वक़्त गुज़र गया। आखिर महमूद ने सर ऊपर उठाया और इसकी आवाज़ कमरे में गूंजी। अगर तुम दोनों मुझे इजाज़त दो तो कुछ अर्ज़ करूँ? ज़रूर करो, क्योंकि हमें खामोश बैठे हुए काफ़ी देर गुज़र गई है। तमाम हालात पर गौर करने के बाद एक चीज़ मेरे ज़हन में बहुत ज़ोरों शोर से चुभने लगी है। बस यूँ समझो कि खुतबत मचा रही है। या अल्लाह रहम, ज़रा जल्दी बताओ वो क्या चीज़ है, कहीं तुम्हारा ज़हन बिल्कुल नकारा न कर दे। हम बेगम खान के बहन के खामन जब्बार तौफीक से मिल चुके हैं। इसकी बेटी फरदौस नसीब से भी मिल चुके हैं। इस वक्त हमने ये बात तो फ़ौरन महसूस कर ली थी कि फरदौस नसीब की शक्ल सूरत बेगम खान से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन एक बात बिल्कुल नज़रअंदाज कर गए, और वो बात मुझे अब याद आई है। और वो क्या बात है? दोनों ने बेचैन होकर एक साथ पूछा। ये कि जब्बार तौफीक की शक्ल सूरत भी इस घर में मौजूद एक आदमी से मिलती है क्या? दोनों हैरत ज़्यादा लहजे में बोले। दोस्तों, इस नावल की लास्ट किस्त आइंदा बुध को आपको पढ़ने को मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।